राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर एक ऐतिहासिक भावुक पल देखने को मिला। भारतीय वायुसेना के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले MiG-21 लड़ाकू विमान अब अपनी अंतिम उड़ानों की ओर बढ़ रहे हैं। आधिकारिक रिटायरमेंट से पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस विमान में सॉर्टीज ली और इसके गौरवशाली इतिहास को सलाम किया। MiG-21 वही UW विमान जिसने 2060 में भारतीय वायुसेना में एंट्री ली और 6 दशकों से अधिक तक आसमान की शान बना रहा। दुनिया भर में लगभग 11,000 MiG-21 बनाए गए और 60 से ज्यादा देशों ने इसे उड़ाया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि MiG-21 बेहद चुस्त, फुर्तीला और सरल डिजाइन वाला विमान था। 1985 में उन्होंने पहली बार तेजपुर में इस विमान को उड़ाया था। उनका कहना है कि मैक्स रीहीट पर MiG-21 200 से 250 मीटर प्रति सेकेंड की दर से चढ़ सकता है। यही वजह है कि इसे उड़ाने वाले हर पायलट के दिल में इसका खास स्थान है। MiG-21, yes, it has been the workhorse of the Indian Air Force. We've inducted it in 1960s and still continuing with it. And this has been actually one of the most mass-produced supersonic fighter jet, if I can say. About 11,000 or so were produced, and more than 60 countries have operated it. It's a design which is very limited numbers, like Delta with the tailplane. And we've used it for our training after the initial conversion means after getting commissioned, conversion onto fighters. So my first experience was in 1985 when I got immediately after conversion. I went to Tezpur and we flew that time called the Type 77, one of the MiG-21s. So after flying the Kirans, it was a revelation that the aircraft could feel like this. It's an amazing aircraft to fly. Very, very agile, very maneuverable, and very simple design. But it requires some kind of initial training for you to get used to it. It is good for its rate of climb. It was made as an interceptor. So at max reheat, it could climb more than 200-250 meters per second. So I think it is going to be one aircraft which is going to be missed by people who have flown it earlier. But yes, everything has time and place. Now we have to move on because this technology is old. It's very difficult to maintain this technology now. So we've decided to now call it a day for this aircraft and move on to the new platforms like the Tejas Mark II, Rafales have come in, Su-30s are already operating. So these platforms will take this place. You've been closely associated with Tejas, and Tejas is going to replace it. So how would be the transition? Tejas was actually designed as a MiG-21 replacement. That's why it is a small aircraft. It was designed around MiG-21 and it was conceived with some kind of motivation from Mirage. That's why there's a Delta platform. And it is going to replace MiG-21 quite well, but it will have to evolve. Tejas now will have to think of new weapons for Tejas also. And as a training role, initial fighter training role, I think it can fit in very well. So we have this 83 contract already on. We have another contract lined up to be signed very soon. So I expect, like we had the MiG-21s, various versions of Tejas, whether Tejas Mark I or Mark II, or later on MCA, will replace this fleet. MiG-21 जो है 1963 में भारत में आया था, भारतीय वायुसेना में आया था. इसका पहला स्क्वाड्रन जो बना था वो चंडीगढ़ में बना था, 28 स्क्वाड्रन. क्योंकि ये सबसे पहले सुपरसोनिक फाइटर था भारत का, इसलिए 28 स्क्वाड्रन का नाम फर्स्ट सुपरसोनिक्स पड़ा था. और उसके बाद 1965 की जंग में MiG-21 की भागीदारी थी. इन्होंने अपना ऑपरेशनल रोल निभाया एज एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट. एंड उसके बाद MiG-21 जो है, हमने इसकी आइटरेशंस की. उस टाइम पे टाइप 74, टाइप 76 आया था. फिर 1971 की जंग में MiG-21 ने पार्टिसिपेट किया. अगर आपको याद होगा, MiG-21 ही वो एयरक्राफ्ट था
जिन्होंने गवर्नर्स रेजिडेंस में इसको अटैक किया 57 MMRP से बांग्लादेश में, ढाका में, एंड 14 दिसंबर की वो डेट थी। 15 दिसंबर को गवर्नर ने रिज़ाइन कर दिया और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। वी हैड 93,000 ऑफ देयर प्रिजनर ऑफ वॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1971 वॉर में जब अटैक किया था उस टाइम 4 स्क्वाड्रन थी, 28 स्क्वाड्रन था, ओरियल्स और फर्स्ट सुपरसोनिक्स जो थे। उसके बाद मिग 21 के काफ़ी सारे चेंजेस आए। हम टाइप 77 जो मिग 21 FL था, उसके बाद मिग 21 MF आया टाइप 96, फिर उसको और चेंजेस किए, अपग्रेड किए, टाइप 75 आया मिग 21 बिस ऑपरेशन सफ़ेद सागर में, जहाँ पे मिग 21 को यूटिलाइज किया गया सारे ऑपरेशनल रोल्स में, हाई माउंटेनियस टारगेट्स में अटैक करने के लिए, फोटो रिकॉनेसेंस रोल में। 1999 में स्क्वाड्रन बुंदेला ने अटलांटिक शूट डाउन किया था अपने मिग 21 बिस से ही R-60 मिसाइल यूज़ करके। उसके बाद 2001 के बाद मिग 21 जो है सारे अपग्रेड होके मिग 21 बाइसन बन गए, धीरे धीरे करके टाइप 96 बंद होते गए और अब जो है हमारे पास मिग 21 बाइसन है। मिग 21 बाइसन का रोल 2019 में बालाकोट के टाइम ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने शूट डाउन किया था उनका F-16, पाकिस्तान का F-16, पाकिस्तानी एयरफोर्स F-16। देन कमिंग टू 2025 इट हैड डन इट अपना ऑपरेशनल रोल किया उन्होंने ड्यूरिंग दी ऑप सिंदूर एंड नाउ 60 साल की सर्विस के बाद इंडियन एयरफोर्स में मिग 21 अब अपने ऑपरेशनल रोल ख़त्म कर रहा है। इसका चंडीगढ़ में इसका लास्ट फ्लाइंग होगा 26 सितंबर को एंड दिस कंक्लूड्स द जर्नी, 60-year लॉन्ग जर्नी विद इंडियन एयरफोर्स। आपने भी क्योंकि इस पर फ्लाइट हुई है, अगर इसके ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस के बारे में अगर आप कुछ बताएं, अभी के जो भी मौजूदा इसके जो समकक्ष के जो प्लेन्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं। सी मिग 21 जब आया था दिस वाज एक हाई स्पीड सुपरसोनिक इंटरसेप्टर था। इनफैक्ट जब मिग 21 आया था तो लोग प्रेशर सूट के साथ फ्लाई करते थे। रशिया ने इसको डिज़ाइन किया था B-52 बॉम्बर्स को शूट करने के लिए, बट इंडियन एयरफोर्स में इसको यूटिलाइज किया ग्राउंड अटैक रोल के लिए भी। और जो इसका अपग्रेड हुआ बाइसन, उसमें इसमें मॉडर्न EW सूट लगाया गया, एक रडार लगाया गया, मॉडर्न मिसाइल्स लगाई गई लाइक RWE R-73 और इट कुड होल्ड इट्स ओन वेट इन कॉम्बैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Just that it is still a very potent fighter, but now it's time for making space for a new generation of aircraft because the generation has changed. जी, ऐसी फ्लाइट्स या जो भी आर्म्ड इक्विपमेंट होते हैं उनकी जो सिग्निफिकेंस देखी जाती है कि अपने साथ के कितने बड़े बड़े या कैसे को मार गिराया है, क्या किया, इसके बारे में अगर आपको डिटेल दें, जैसे आपने F-16 बताया, ऐसे कुछ और। So, जब मिग 21 आया था, दिस इज द ओनली एयरक्राफ्ट जिन्होंने सारे जनरेशन ऑफ जहाज़ों को पाकिस्तानी इन्वेंट्री में जो थे वो शूट डाउन किया है। एंड जब ये आया था उस टाइम पे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-104 जहाज़ थे विच वॉज देयर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। उसके जवाब में बैलेंस करने के लिए मिग 21 आया था एंड दिस हैज़ गिवन इट्स वेट इन गोल्ड। दैट इज ऑल आई कैन टेल यू एंड इट इज स्टिल कंटेम्प्रेरी बट नाउ इट्स टाइम टू say goodbye to this mean machine. लेकिन अब समय नई तकनीक को अपनाने का है। वायुसेना प्रमुख ने साफ कहा कि मिग 21 की तकनीक पुरानी हो चुकी है और इसका मेंटेनेंस मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अब भारतीय वायुसेना आगे बढ़ रही है तेजस MK2, राफेल, सुखोई 30 जैसे आधुनिक विमानों की ओर। मिग 21 अब इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन उसकी गूंज भारतीय आसमान में हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा सुनाई देगी।